और जनवरी के इस वर्ष की पहला दिन और आप सबसे मिलके और आपको देख करके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। And this is my prayer that 2021 will be a blessed year for all of you. और ये जो वर्ष है 2021 और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब एक आपके सभी के जीवन में आशीषमय का समय होगा। 2020 was not that so good or like physically for mostly all of us. It was not so good. Can you hear me? बीच में कट गया था। 2020 was Can not. you just repeat it once again? 2020 was not that so good as we were expecting. हमारी अपेक्षा के अनुसार 2020 बहुत अच्छा नहीं था और जैसे हम लोग अपेक्षा कर रहे थे वैसा बेहतर नहीं हो But I can say that in 2020, the Lord have done greater and marvelous things in our life. I think Thompson brother का internet को कोई problem? There is a bit of problem. Okay. ജയൻ ഭയ്യയുടെ മുകളിൽ തന്നെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. I can 2020 थोड़ा सा बेहतर समय नहीं रहा मेरे ख्याल से. But the Lord have done greater and marvelous things in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत बड़े और अद्भुत और बड़े काम किए हैं. I can tell you one thing. 2020 was actually a different year. I can say in this way, our perspective was changed in 2020. और मैं इस तरह से कह सकता हूं कि हमारा जो दृष्टिकोण है परमेश्वर ने 2020 में उसको थोड़ा सा बदल दिया. I was just listening to all those testimonies. मैं इन सारी गवाहियों को सुन रहा था. And most of the testimonies has come in this way, that this was the year that we have done more ministries. We preached more. We said the gospel to many people. So everything was actually more that we could do for God. मैं कई गवाहियों को सुन रहा था और जो ज्यादातर मैं सुन रहा था वो ये था कि इस साल हमने ज्यादा किया, हमने ज्यादा प्रचार किया, हमने ज्यादा सेवकाई की. Okay. Yeah. When Jane was telling the testimony, he said this year he have attended the most meetings. When Thompson brother was testifying, he said, this year I could share the gospel to many people. When Pastor Peter was telling, he said, I could go and preach online to different countries. Even Joy Uncle, when he was ministering this year, I came to listen to his messages, few months before every day. So I think the most of our pastors could say this testimony. We have done more ministries. और जैसे जैन भाई बता रहे थे, थॉमसन भैया बता रहे थे, पास्टर पीटर बता रहे थे, पास्टर जॉय बता रहे थे, इन सबकी गवाहियों में से हम एक बात ये समझते हैं कि जितना वो उन्होंने पहले किया उससे भी ज्यादा उन्होंने इस साल किया कि सबकी गवाहियों में उन्होंने बताया. What is the message in that testimony? The message is, even COVID or let it be anything, nothing can stop the work of God. तो इस गवाही में, इन गवाहियों में एक संदेश क्या है? इसमें से कौन से संदेश को हम समझ सकते हैं? वो ये है कि चाहे कोविड ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता.
We have done mercy ministries. We have done lot of things. We have touched thousands of people this year. I think Lucknow Church can testify this. One of the greatest mission ever we did as a missions was in 2020. और हमने बहुत दया की सेवकाइयों के द्वारा, कई सेवकाइयों के द्वारा बहुत कुछ हमने किया, हजारों लोगों को हमने स्पर्श किया। मेरे ख्याल से लखनऊ कलीसिया होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेवकाई का काम इस साल हमारे द्वारा हुआ है। And even tomorrow also we are going to do some ministries. We are going to touch the people who are on the street, who are the railway station, who are on the street. We are going to touch such kind of people tomorrow. That means the work of God is actually increasing even in midst of COVID. और अगले साल भी माफ करेगा, कल भी हम थोड़ा कुछ और कामों को करने जा रहे हैं, कुछ चीजों को करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर का जो कार्य है वो बहुत आयत से हुआ है। And I hope you remember in 2020 we have said this is the year of growth. That was the heading, but we focused on spiritual growth. God enabled us to sit in the presence of God. God enabled us to read the Bible more. God enabled us to know God more. God enabled us to share about God to others more. That means actually it was an year of spiritual growth. जब शीर्षक या फिर एक विषय वस्तु हमने पिछले वर्ष के लिए ली थी, वो था बढ़ोतरी का वर्ष। तो उसमें हमारा जो ध्येय था या फिर हमारा जो मकसद था वो था आत्मिक बढ़ोतरी। और हम देखते हैं कि पिछले एक साल परमेश्वर ने हमें मदद किया कि हम आत्मा में और बढ़ सके, हम वचन में और बढ़ सके, हम अपने आप में परमेश्वर के आत्मिक रूप से और अधिक बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकें। So in short, 2020 was not a bad year. God enabled us to be increasing in the spirit in 2020. तो संक्षिप्त में देखा जाए या बताया जाए तो 2020 एक बुरा वर्ष नहीं था। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम और बेहतर माफ करेगा, परमेश्वर ने मौका दिया कि हम इसमें बढ़ सकें। And this is my prayer in 2021. God will use us more powerfully. और ये मेरी प्रार्थना है कि 2021 में परमेश्वर हमें बहुतायत से और सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर सके। If I could say last 1 month, 31 days we had chain fasting. और मैं अगर बताऊं तो पिछले एक महीने 31 दिन तक हम चेन फास्टिंग कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। So it was actually an year of growing in the Lord. तो ये एक वर्ष जो था परमेश्वर में बढ़ने का एक वर्ष था। And I pray that amazing things are going to happen in 2021. And I bless all of you. And I'm so happy to see your faces. Those who have switched on your video, thank you so much for showing your faces. And those who are getting ready to switch on your video, I would like to see you when I'm going to minister to you this morning. और मैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने वीडियोस को चालू रखा है, उनके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके चेहरे, आपकी शक्ल देखने का मुझे मौका मिला है। और बाकी लोग जो अभी वीडियो ऑन करने वाले हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब मैं आज के दिन सेवकाई करता हूं तो आप लोगों की शक्ल, आपका चेहरा देखकर करना चाहता हूं। You guys look beautiful. You guys look so good. So get ready to show your face in 2021. आप बहुत ही सुंदर हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए तैयार रहें कि 2021 में अपने चेहरे को दिखाने के लिए तैयार रहें। One of the major concern I had was when Joy Uncle and family had went through the COVID, especially as we know and we heard, to those people who are in the old age, when COVID hits, it's going to be tough. But,
we continuously prayed for Joy Engel and family. God's healing hand we have seen over their life. And I'm so happy to see them through this Zoom this morning. और जॉय अंकल और उनका परिवार जब कोविड से होकर जा रहा था तो वो हमारा एक मुख्य चिंता विषय था। उनके लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते रहते थे। तो हम देखते थे क्योंकि हम जानते हैं कि बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कोविड का समय, मगर आज के दिन जूम में उनके चेहरे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। And God bless every one of you is my prayer. मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। Okay, today my assignment is the theme presentation. तो आज का जो मेरा कार्यभार है वो है कि थीम को या फिर शीर्षक विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। And I hope you guys are ready to receive the word. और मैं आशा करता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। And I'm going to minister to you this morning here in Zoom. And the next session, I'm going to speak at 7 o'clock Indian time, where you can watch online on Facebook on the second topic on this same, in the sense, the same theme, harvest. I'm going to talk on the second topic by 7 o'clock today. So if you would like to hear that message, join in Facebook. I will share the link for you guys so that you can just merge in. आज अभी मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूं, मगर इसका दूसरा भाग या फिर ये फसल की कटनी का जो दूसरा भाग है आज शाम को 7 बजे फेसबुक में मैं फिर से बांटूंगा। फिर से नहीं, माफ करना, फिर से नहीं, फेसबुक में 7 बजे शाम को मैं बांटूंगा। उसका लिंक मैं कलीसिया के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको समय है, आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। So morning, what I'm going to speak to you from the theme is what are the requirements of harvest? और आज जो सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो ये है कि कटनी का, फसल काटने के लिए क्या-क्या बातें जरूरी हैं। Pastor, you are muted. Okay, are you okay? There? Is it okay? Yeah. Okay. So this morning, I would like to speak to you on the requirements of an harvest. And tonight, I'm going to speak to you from the call for an harvest. आज की सुबह जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं वो ये है कि कटनी के लिए क्या-क्या जरूरी बातें हैं या क्या-क्या है। और आज की शाम को जब मैं आपसे बांटूंगा तो कटनी के बुलावे या बुलाहट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। So get ready. If you are writing up, keep on writing, because whatever we are going to speak is an important message for year 2021. इसलिए तैयार रहें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखते रहें, क्योंकि जो कोई आज हम बताने जा रहे हैं वो आज इस साल 2021 के लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। 2020 was the year of growth. And you know what God spoke to me? Once the growth has been taken place, the next thing what to happen is the harvest. तो 2020 या 2020 जो है वो बढ़ोतरी का या फिर बढ़ने का एक वर्ष था। अब जो परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं वो ये है कि अगला कदम क्या है या अगला क्या होने वाला है। So when you have a spiritual growth, the next thing what to do is a spiritual harvest. एक बार जब आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो जाती है तो अगली बात या उसके बाद जो आता है वो ये है कि आत्मिक कटनी का समय होता है। And tonight when we are going to speak to you from this topic, I'm going to share from the book of Mark chapter 4 verses 26 through 29. Mark chapter 4 26 through 29.
और आज की सुबह जब हम इस वचन के बारे में सुनने जा रहे हैं तो हम अपने मनन के लिए इस वचन को निकालेंगे मरकुस चौथा अध्याय 26 थ्रू 29. 26 से लेकर 29 तक. Okay, as we are going to that verse, I just want to present, the theme for the year. If you can just look at the screen, we declared this year as the year of harvest. So when you see the theme, it is only written as the year of harvest. What we are going to focus in 2021 is the year of spiritual harvest. तो जब आप इस थीम को देखेंगे आपके स्क्रीन शेयरिंग में आपको या स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें लिखा तो सिर्फ इतना है कि द ईयर ऑफ हार्वेस्ट यानी कटनी का वर्ष. मगर जिस बात को हम ध्यान रखेंगे वो ध्यान इस बात पे हमें रखना है कि इसके बीच में आत्मिक में हमें जोड़ना है यानी आत्मिक कटनी का वर्ष. Last year, it was the year of spiritual growth. This year, it is the spiritual harvest. पिछले साल ये आत्मिक बढ़ोतरी का था और आज या इस साल हम आत्मिक कटनी के बारे में सोच रहे हैं. And that's what in the verse which you see on the screen from Psalms 2:8, it says that ask for me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession, which speaks about a spiritual harvest. और भजन संगीता 2:8 को जब हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा. तो यहाँ पे हम एक आत्मिक कटनी की बात देखते हैं. So this is the theme presentation which I'm going to do to you, is where I'm going to focus to take you to the book of Mark, chapter 4, verses 26 through 29. I'll not be focusing just on that verses. It is a theme presentation, so accordingly I need to present. So just have an eye on that verses as well. तो इस वचन को यानी मरकुस 4 के 26 से 29 को थोड़ा आप ध्यान में रखें, मन में रखें, क्योंकि आज जब हम अपने विषय वस्तु को शीर्षक को जब आपके बीच में बांटते हैं तो मैं सिर्फ उसके आधार पर आज के वचन को मैं बांटूंगा और इस वजह से दूसरे वचनों को भी देखना पड़ सकता है, मगर इस वचन को आप अपने मन में बनाए रखें. One thing which I will be suffering a little bit when I present this theme is I'm speaking to a generation who have very less knowledge about harvest. जब मैं इस वचन को आपके समक्ष बांटता हूं तो एक कठिनाई को जो महसूस मैं करता हूं वो ये है कि मैं उस एक पीढ़ी से इसके बारे में बांट रहा हूं जिन्होंने कटनी को ठीक से देखा नहीं है. In the olden days, when we see harvest, it carried with a dimension of survival. जब हम पुराने दिनों में कटनी के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो उसमें संरक्षित रहने की एक बात भी या फिर बचे रहने की जिंदा अस्तित्व में बने रहने की एक बात भी आती है. But when we see in the current scenario, the harvest or Thanksgiving has been used for getting together, partying, fellowship. The concept of harvest has been changed in our generation. मगर आज की पीढ़ी में हमारी पीढ़ी में जब हम कटनी के बारे में बात करते हैं तो वो संगति के बारे में हो जाता है, आनंद मनाने के बारे में हो जाता है. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका जो मनोवृत्ति है या फिर दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदल गया है. In the olden days, it was an indication on how you might eat during the next year. और पुराने नियम में नहीं, पुराने दिनों में जब हम इसको देखते हैं तो हम ये इस बारे में था कि भाई अगले साल हम खाना कैसे खाएंगे. Is that right? Yes. If you don't have a proper harvest, then what you are going to eat the next year? तो यदि मन में यही बात आती थी कि भाई अगर आज इस साल हमारी कटनी अच्छी नहीं हुई तो
अगले साल हम खाएंगे क्या? So harvest meant a great message. Harvest had a great message. तो जो कटनी की या फसल की कटनी का समय था, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा रहता था। And Jesus always loved to speak about agricultural principle to connect or to illustrate the spiritual principle. तो यीशु हमेशा जो थे कार्शिक रूप से बातें करते थे या फिर उसको आधार बनाकर अपनी बातों को बताते थे। I'll just give you a short example from Mark chapter 4. उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको मरकुस चौथे अध्याय से बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। When from verse 1 towards few verses, Jesus was speaking about a sower, which points out the truth of our heart, which is the seed, soil, and a sower. और जब हम पहले पद से जब देखते हैं 26 से पद से देखते हैं तो परमेश्वर एक बात को बताते हैं जो कि बीज बोने वाला और जो मिट्टी है उसके बारे में बताया गया है। And in chapter 4, verses 26 onward, we see Jesus speaking on the principle of growing and an harvest, which we are going to focus today. और उसके आगे जब हम देखते हैं तो यीशु हमें जो बताते हैं वहां पे वो है बढ़ोतरी और फिर उसके बाद कटनी के बारे में। When it comes to verse 30, chapter 4, verse 30, Jesus was speaking and it was an illustration on the potential of the harvest. और उसके बाद chapter 20 No, chapter 4, verse 30. Verse 30. तीसवें पद में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं तो वो कटनी के बारे में अब बताया जा रहा है। So when we study all this thing, the entire chapter, Mark chapter 4, has been focused on harvest. तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो चौथा अध्याय है उसको कटनी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया गया है या लिखा गया है। And there is actually where I am going to give you a quick review on what it meant by spiritually. और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ पे बताऊंगा या फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। Let's go directly to the topic, the requirements of an harvest. तो आइए हम सीधे उस विषय की ओर जाएं जिसका जो विषय आज का पहला भाग है और विषय का पहला भाग है कि भाई कटनी के लिए जरूरतें क्या है या क्या जरूरी हैं। Okay, if you are writing, write with me. If you are listening, listen with me. यदि आप लिख रहे हैं तो मेरे साथ लिखें, अगर यदि आप सुन रहे हैं तो मेरे साथ सुने। Number 1. पहली बात, harvest requires a planning. सबसे पहले यह है कि कटनी के लिए एक योजना की जरूरत होती है। Number 2, harvest needs to have a process. दूसरी बात यह है कि कटनी के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। Number 3, harvest needs a picking. Yes. और तीसरी बात यह है कि चुनने या उठाने की एक जरूरत होती है कटनी में। That means the reaping is what we are mentioning. Yeah. Okay. Number 4. Yeah. Number 4, harvest requires a preserving. चौथी बात यह है कि कटनी में उसको संभाले रखने की या उसको सुरक्षित रखने की योजना भी आती है। So I hope you got that 4 things. The main important 4 things for 2021 is these 4 things. Number 1 is that we need to have a planning. Number 2, we need to have a process. Number 3, we need to have a picking. And number 4, we need to have a preserving. All the letters starts with P in English.
अंग्रेजी में सारी बातें पी से शुरू होती हैं, मगर हिंदी में वो शायद संभव नहीं है। मगर जो मुख्य बात है वो ये है कि 4 बातें 2021 के लिए हमें ध्यान रखनी है कि कटनी के लिए योजना जरूरी है, प्रक्रिया, उसकी एक प्रक्रिया होती है वो भी जरूरी है, और उसके चुनना, काटना या उठाना या लेना ये जरूरी है, और साथ ही साथ उसको सुरक्षित रखना, यानी जो काटा हुआ फसल है उसको सुरक्षित कर संभाल कर रखने की या स्टोर करके रखने की भी आवश्यकता है। So let's go on the first topic. Harvest needs a planning. तो सबसे पहले बिंदु की ओर हम आएंगे, और वो है कि कटनी के लिए एक योजना आवश्यक है। And as you know that this is a theme presentation, this is not a revival meeting. So we are going very slowly so that you will digest what we are speaking. तो आज जैसे आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है या विषय वस्तु या शीर्षक है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए बहुत आराम से हम आज जा रहे हैं। आज ये कोई रिवाइवल मीटिंग नहीं है, बेदारी का मीटिंग नहीं है, इसलिए बहुत आराम से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इसको समझ सकें। So harvest requires a planning. तो कटनी के लिए एक योजना जरूरी है। Some super spiritual people, can I use that word? Some super spiritual people says that we are led by the Holy Spirit. We don't want any planning. We don't want any preparation. They say, you know, the Spirit of God will guide and lead. But do you know that Holy Spirit is the greatest planner of the universe? अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। कुछ अति आत्मिक लोग वो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करता हूं, तो वो जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता रहता हूं, इसलिए मुझे योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। मगर क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़े योजना बनाने वाले व्यक्ति खुद पवित्र आत्मा है? Hallelujah, praise be to God. Amen. So we serve a God who has planning. That's why in the book of Jeremiah, when Jeremiah was writing up the prophecies, he was writing, when I was in my mother's womb, you know, God have designed, God have pre-planned, God have destined my destiny. When I was in mother's womb, that means our God is a God who has nice timetable. इसलिए ही यिर्मयाह जब अपनी किताब को लिखता है, अपनी भविष्यवाणियों को लिखता है, तो वो इस प्रकार से कहता है कि जब मैं अपनी माँ के कोख में था तभी से परमेश्वर ने मेरा जो मकसद है तय कर रखा था, मेरी मंजिल तय कर रखी थी, मुझसे क्या किया जाना है वो सब तय करके रखा हुआ था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक समय सारणी है। And do you know what Jesus said about planning? और आपको मालूम है कि यीशु ने योजना के बारे में क्या कहा? I'm bringing everything from the scripture to prove that we need to have a planning. और मैं सब कुछ यहाँ परमेश्वर के वचन में से लेकर उठाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि हर एक बात के लिए की योजना की जरूरत पड़ती है। Book of Luke, Gospel of Luke, chapter 14, verses 28 and 29. Jesus says, he who builds a house or he who goes for a war needs to have a proper planning. Then only he can have a success. Could you please repeat the scripture again? Luke chapter 14, verses 28 and 29. तो लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 28 से लेकर 28 और 29 पद में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी घर बनाने से पहले उसके लिए एक योजना बनाना जरूरी है। Yeah, about house as well as those who are going for a war. और एक घर के लिए भी, साथ ही साथ उसके लिए भी जो एक युद्ध करने के लिए जा रहा हो। That means Jesus says we need to have a planning before we make a tower. Jesus says we need to have a planning before we go for a war. That means we need to get ready. We need to have a proper planning for, the preparation for the harvest.
इसका अर्थ ये है कि यीशु यहाँ पे कहते हैं कि हमें कुछ भी करने से पहले एक योजना बनाने की जरूरत है। हमारे लिए जरूरी है कि हम योजनाबद्ध तरीके से करें। इसका अर्थ ये है हमारे लिए कि कटनी करने के लिए या कटनी के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। So when Jesus was speaking, Jesus was meaning by we need to plan it, we need to make a cost, and we need to succeed in the planning what we are doing. तो यहाँ पे यीशु का कहने का अर्थ ये है कि भाई सबसे पहले तो हमें एक योजना की जरूरत है। दूसरी बात उसकी कीमत हमें समझनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि उसमें हमें सफल होने की आवश्यकता है। I'm going to make a subdivision on this planning now. अब इस बिंदु के अंदर या अंतर्गत कुछ एक छोटी बिंदुओं को मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। Number one, very quickly and very, in an understanding format. If you have a planning, you need to again subdivide it into three things. Number one, when you need to plant, where you need to plant, and what you need to plant. और जब हम इस बिंदु को देखते हैं, कटनी के बिंदु को देखते हैं, कटनी की योजना के बिंदु को देखते हैं, तो उसके नीचे कुछ एक बातों को हमें ध्यान में रखना है। वो ये है कि जब हम बीज बोते हैं तो हमें कब बोना चाहिए, कहाँ बोना चाहिए और कैसे बोना चाहिए। Yeah, what, where, and when. माफ करिएगा, क्या बोना चाहिए, कहां बोना चाहिए और कब बोना चाहिए। This is very important in planning. ये बहुत जरूरी है योजना बनाने में। Number one, what to plant. सबसे पहली बात यह है कि भाई हमें बोना क्या चाहिए। Let me ask you this question. What is the harvest you're looking for? When you have a plan or an idea about the harvest, what you're planning, then you need to be very careful what you're planting for the harvest. यदि ये बात हमें समझनी जरूरी है कि जब हम कटनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना है या ये सोचना है कि भाई उस कटनी को काटने के लिए हमें क्या बोना है। Now listen to me very carefully. This is a very important statement. Okay, never forget there is a law for harvest. ये बहुत ही एक जरूरी कथन है, इसलिए ध्यान से सुने। कभी ये ना भूलें कि कटनी का एक नियम होता है, कानून होता है। What you sow is what you reap. जो कुछ आप बोते हैं वही आप काटते हैं। This is a very important law in the harvest. याद रखें कि ये बहुत ही एक जरूरी नियम है कटनी में या फिर फसल की कटनी में। If you are going to put the seed of an orange plant, you will not get apple. यदि आप एक बीज संतरे का बोते हैं तो आपको सेब के फल नहीं मिलेंगे। If you need to have an apple plant, you need to sow the apple seed. और यदि आप चाहते हैं कि आपको सेब का फल मिले तो उसके लिए सेब के बीज भी बोना जरूरी है। You know what God spoke to me? God spoke to me. You need to redirect your mind and your direction that will take you to the harvest in 2021. I didn't understand. Okay, your mind and your direction should align towards the harvest, because in the olden days your mindset is different, your perspective is different, and God says you need to change your thinking pattern. You need to change the direction where you are leading. You need to think positively, think good, think in an investment where the kingdom of God will increase. So thinking and direction is very important for a greater harvest. तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि आपकी सोच और आपका हृदय यानी आपकी या फिर आपकी योजनाएं जो हैं वो एक समान होनी चाहिए। पुराने जमाने में जो दृष्टिकोण कुछ अलग हुआ करता था, उसी प्रकार आज भी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है कि हम जब कटनी करते हैं तो उससे क्या अपेक्षा करते हैं और क्या सोचते हैं, वो बहुत जानना जरूरी है।
I'll just make it little bit more simpler, Jane, so that they will understand. Listen to me very carefully. Harvest is a spiritual thing, what we are speaking of. Okay. जो But God has an important role with your mindset. जो कटनी है वो बहुत जरूरी एक बात है, बहुत जरूरी एक चीज है, मगर यहाँ पर sorry, I'm losing my thought process. Once again, please. Okay. No issues. I'm just connecting something spiritually, so that the people will understand. Now, the harvest in the olden days haven't happened in a way that it should happen, because our mindset is not aligning to God's mindset. तो पुराने नियम में जो कटनी हुआ करता या पुराने दिनों में जो कटनी हुआ करता था वो सही से नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारा मन और परमेश्वर की योजना एक साथ नहीं बैठती थी. Okay, let me put in one more word, Jen. Let me put in one more word. I preach something, okay, but my thinking about it is different. So what happens is my preaching and my thinking is going in two directions where the harvest is not happening. And God wants us, our preaching as well as our thought process go together for a greater harvest. I hope now it's more clear. दूसरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दूसरे शब्दों में एक और बार कहा जाए तो पुराने समय में क्या होता था कि प्रचार जो हम करते थे और जो हम सोचते थे वो दो अलग अलग दिशाओं में जाते थे, और क्योंकि वो दो अलग अलग दिशाओं में जाते थे तो वो उतनी कटनी हमारे जीवन में नहीं हो पाती थी जितनी होनी चाहिए. Okay, for example, and I'm taking an example about myself. Okay, I'm taking an example of myself. I preach about love, I speak about agape, but if I don't have love, what the word of God says and my thought process is not working together. So that is why I'm not reaching to the harvest. What God is speaking to us this afternoon is that what you preach and what you do should align together for the great harvest. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं अपना एक उदाहरण देके मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं प्रेम के बारे में, अगापे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरे अंदर प्रेम अगर नहीं है तो मेरी बातें और मेरा प्रचार जो है वो दो अलग अलग बातें हो जाती हैं. Is that right? Yes, correct. So what happens is we will not have a spiritual harvest as God is planning, because we are not aligning ourselves with God. इसलिए मैं जो उसके द्वारा होता क्या है कि कई बार जब हम और परमेश्वर एक साथ बने नहीं रह पाते हैं या एक ही साथ नहीं होते हैं, इस वजह से कटनी भी हमारी ठीक से नहीं हो पाते हैं. Okay, in short, okay, what you need to plan is what you are planting should be godly thing. You should plant what you should reap. So we need to plan according to God's planning. तो दूसरे जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, इसीलिए जो हम काटना चाहते हैं उसको हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोना चाहिए. Okay, on the second part now, in the second part, the subdividing part, where should I plant? Where should I plant? छोटी बिंदु में दूसरा बिंदु कि भाई मुझे कहां बोना चाहिए. In planning, the second point is where should I plant? और योजना में दूसरी बात ये आती है कि भाई मुझे बोना कहां चाहिए, मुझे कहां बोना चाहिए. Bible says in this way, it says in this way, scripture says the sower, listen to me this word very carefully, the sower put the seed, in some translation it says on the ground. और मेरी बात को ध्यान से सुने कि इस कहानी में इस प्रकार से बताया गया है कि जो बीज बोने वाले ने क्या किया था कि कुछ अनुवादों के हिसाब से जमीन में बीज फेंका या बोया. I don't know if we will be able to make them understand in a proper way as in the English. In some translation, it says instead of on the ground, it says to the ground. Okay, upon the ground.
in some translation it says about the ground. Okay, but the proper understanding is the sower went to the ground and he invested the seed in the ground. अच्छा, कुछ अनुवादों का खेल है यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कुछ अनुवादों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है या ज्ञात होता है कि जो बीज बोने वाले ने क्या किया, बीज ऐसे जमीन के ऊपर फेंक फेंक के चला गया। मगर जो समझ यहाँ पे हमें समझनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, वो ये है कि जो बोने वाले ने अपना कुछ निवेश किया, निवेश करके उसने जो बीज है वो जमीन के नीचे बोया था। You know what, Jain, it's been 2 months I'm in Kerala. Okay, I'm very poor in agriculture. Okay, and I was not knowing I'm going to prepare this sermon. Okay, from last 2 months when I came to Kerala, somewhere एक भूत मेरा ऊपर आया, agriculture का भूत. So what I did, I went to a garden, bought some seed, brought it and started to do my own work. Okay, you can say. तो कृषि में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, मगर पिछले, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से मैं केरला में हूं, तो पिछले 2 महीने से मेरे अंदर एक भूत सा सवार है कि मुझे थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह करनी चाहिए। तो मैं कहीं जाकर मैंने थोड़े बीज खरीदे और उसके बाद लेकर मैं अपना काम मैंने शुरू किया। So I went here, I started to do the planting process. And you know what, as a planter, what I did was I took a small deep, what do you call it, a hole, then I put the seed, then I put the the mud over it, and I was preparing the land for a harvest. और अब मैं बीज बोने वाले के तौर पे मैंने क्या किया, जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें एक छोटा सा बीज रखा, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी और उसके बाद मैं तैयारी कर रहा था कि मैं भयंकर फसल की कटनी करूंगा। मतलब मैंने एक गड़बड़ किया, वो गड़बड़ की भी बोल के मैं आगे जाएगा। गड़बड़ यही किया, मैंने क्या किया मालूम है, जल्दी ये प्लांट बढ़ाने के लिए मैंने फर्टिलाइजर्स ज्यादा डाला और 10-15 दिन के बाद मैंने देखा, मैं जाके देख रहे, सारे दिन जाके देख रहे, पानी डालता है, देख रहे, पानी डालता है। ओके, कुछ भी नहीं हो रहे थे। फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, ज्यादा खाद पड़ने से वो सब जल गए। हाँ। तो एक आदमी ने मेरे घर पे आया और बोला, पास्टर जी आपने क्या किया ये? तो मैंने बोला ऐसा मैंने काम किया। तो उन्होंने बोला, अरे यार इतना खाद डालेगा तो किधर ये पौधा ऊपर आने का, नहीं ये कुछ ऐसा नहीं होगा, आप जस्ट जमीन में आप बीज बोइए। It is not that I am putting the seed on the ground, it is where I am putting the seed in the ground. ये जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बीज बोया जाना चाहिए। Why in the ground? क्यों उसके नीचे क्यों बोया जाना चाहिए? Because the farmer knows where he is placing the seed will produce what he is thinking or what he is planning. क्योंकि एक किसान जानता है कि जहां वो बीज बोता है उस योजना अनुसार या उस सोच अनुसार जो उसके मन में है, वो वहां से कितना फसल लाएगा। So that means a planning of where you are going to plant is very important in a harvest. तो ये बहुत जरूरी बात है, इसका अर्थ ये है कि ये बहुत जरूरी बात है कि कहां आप बो रहे हैं बीज, उस योजना में ये बहुत जरूरी है, योजना बनाने में ये बहुत जरूरी बात है। Number 3, the third sub point, when to plant. तीसरी छोटी बिंदु यानी कब बीज बोना चाहिए। मैं बीच में मैं जैन को भी थोड़ा रस देंगे, मेरा हिंदी थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करेंगे हिंदी थोड़ा बात करने के लिए। मैं धनीराम बाबा का उधर ही जाता था क्योंकि हमारा चर्च में एक किसान के रूप में मैं उसको देखा है, क्योंकि सारे वेजिटेबल और ऐसा काम धनीराम बाबा करता था।
तो मैं बीच में उधर जाने के समय में ऐसे एक सवाल उनको पूछ रहे थे, बाबा इस बार आपने क्या बोया है? तो उन्होंने बोलता है इस बार हमने चावल डाला। कुछ समय बोलता है इस बार हमने गेहूं डाला। ओके, कुछ समय ये दोनों नहीं डाला, उन्होंने बोलता है इस बार हमने टमाटर डाला। ओके, इस बार हमने कुकुम्बर डाला। ओके, एक फार्मर को मालूम है कब क्या किधर डालना है, when to do, what to do, and where to do. A farmer knows very well, because the right planting is important for a right harvest. क्या कब और कहाँ कुछ करना है किसान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये बातें जब तक सही नहीं हो, ये बातें जब सही होती हैं तभी फसल की कटनी भी सही तरीके से होती है। The farmer knows when to plant a seed. The farmer knows when to do the rice thing, the wheat thing. The farmer knows what and when is the right time for the sowing and when is the right time for the harvest. तो एक किसान ये अच्छे से जानता है कि गेहूं के लिए या फिर चावल के लिए कौन सा समय सबसे उत्तम है। एक किसान ये जानता है कि सबसे उत्तम समय बोने का और काटने का समय क्या है। What I'm trying to make you understand is planning is very important in an harvest. मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि कटनी के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। You may be looking at the farmer as a poor person, but do you know that the farmer has a strategical mind for his harvest? और आप एक किसान को एक बड़े गरीब व्यक्ति के तौर पे देख सकते हैं, परंतु आपको क्या मालूम है कि उसकी रणनीति भी बहुत ही अच्छी होती है। You and me give so much respect for engineers and doctors and stuff, but do you know that if the farmer is not there, you and me will not sustain. हम और आप जो है कि इंजीनियर को या डॉक्टर को बहुत आदर देते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर एक किसान नहीं है तो हम और आप संरक्षित नहीं रह पाएंगे, बचे नहीं रह पाएंगे। So planning for an harvest is very important. तो एक कटनी के लिए योजना बनाना बहुत बहुत जरूरी बात होता है। Okay. I just got a cake. Now somebody have sent a surprise cake for me. So I wish you all had a good Christmas, and I know you guys have made a tasty cake as well. I missed it this time in Lucknow. इस बार लखनऊ में मैं वो केक को लखनऊ के केक को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा केक वेक बनते नहीं है लखनऊ की तरह, तो इस बार मैं केक बहुत मिस कर रहा हूँ। Okay, in Proverbs chapter 18 verses 20 and 21, let me say the last verse for the first topic. Proverbs chapter 18 verses 20 and 21. It says, in Malayalam it says, Vayude bhalattal manushante udaram nirayunnu. Okay, the fruit of your mouth, with the fruit of your mouth, your stomach enriches. What is in Hindi? नीति वचन 18 का 20 और 21। नीति वचन 18 उसका 20 और 21 इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। और नेक्स्ट वर्स और सेम वर्स 20, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। वर्स 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे Yes, now listen very carefully. यहाँ पर हम आ रहे हैं, उस क्षेत्र में आ रहे हैं जहां पे हम शब्दों के द्वारा निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। Every words you release matters to God.
हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो परमेश्वर के सामने मायने रखते हैं. Your voice should be godly voice. आपका जो स्वर है या फिर आपका जो आवाज है वो ईश्वरीय आवाज होना आवश्यक है. When you sow negatively, you reap negatively. When you sow ये positively, you reap positively. यदि आप नकारात्मक रूप से बोते हैं तो आपकी कटनी भी नकारात्मक रूप से ही होगी, और यदि आप नकारात्मक रूप से Everything what you plan is very important in the harvest. कटनी में योजना बहुत जरूरी होती है. वो चाहे आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं, जो कुछ क्यों ना हो, कटनी में आपका जो निवेश है, आपकी जो योजना है वो बहुत जरूरी है. Number 2, दूसरी harvest बात, requires a process. Thompson भैया, can you take over please? I'm struggling a bit. Thompson Bhaiya, can you translate? uh, Okay. Number 2, we are can you going to just look, number 2, we are going repeat to it look once? on, I will just try it. okay. इसको can you just repeat it once again? Actually, it is Number two, I'm going to speak to you on harvest requires a process. दूसरी बात यह है कि जो कटनी में हमें एक प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है. What is the process? I'm going to और ये subdivide into 3 points now. और ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग 3 बातों में देख सकते हैं, 3 मुख्य बातों में देख सकते हैं. Number 1, there पहला, should be a right seed. जो बीज चुनते हैं वो सही बीज होनी चाहिए. Number 2, there should be a right soil. और दूसरी बात है कि वो जो भूमि हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये लगाते हैं, वो सही भूमि होनी चाहिए या जमीन होनी चाहिए. Number 3, there should be a reliable sower. और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बो रहा है व्यक्ति वो विश्वसनीय होना चाहिए. Okay. So the process contains 3 categories. Number 1, good seed. Number 2, the rich soil. Number 3, the reliable sower. I think Thompson Brothers internet is not working. I can hear in between the audio went actually. Yeah. Or you can do one thing, Thompson Brother, you can switch off your camera so that the internet speed can be much better. In between Okay, fine. So we said about. Can you get the third point again? Yeah, the first one is right seed, the rich soil, and the reliable sower. हम लोग ये 3 बातों को फिर से देखते हैं कि सही बीज को पहले हम चुने, और दूसरी बात है कि जो भूमि है वो सही होनी चाहिए, और तीसरा है कि एक विश्वसनीय बोने वाला व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए. ये 3 बातें देखते हैं. Thank you. Everything begins with a seed. Number 1, I'm going to speak to you on seed. Everything begins with a seed. और हर एक बात जो है, सब कुछ जो है, जो शुरुआत होती है वो बीज से शुरुआत होती है. If you invest a bad seed, your harvest will be a bad harvest. और इस बात को हम समझते हैं कि अगर हम एक खराब बीज को लगाते हैं तो उसकी उपज भी खराब होने की पूरी गुंजाइश रहती है. And when we study the Bible, the seed means the word of God. और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, और बाइबल के अनुसार जो बीज जिसको कहते हैं वो प्रभु का वचन है.
And you know what Bible says? Bible says in this way, the seed which is the word of God, which only can bring awakening, revival in midst of us. और बाइबल के अनुसार ये जानते हैं कि जो वचन है वही एक जागृति ला सकता है हमारे जीवनों में और वही फलवंत हो सकता है. Revival is not bringing by any pastors. Revival cannot bring by any, prophets, any apostles. Only the revival can bring is by the word of God. और इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो जागृति आती है, पूरी एक जागृति अगर हमको देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो वचन से होता है, वो किसी प्रॉफिट से या कोई भविष्यवक्ता से नहीं होता. Now listen very carefully. When you invest right seed upon people's life, I'm doing right now, I am investing seeds on your life. So when I invest the right seed, the harvest I'm going to get from you is the right harvest. और इस बात को ऐसे हमको समझना चाहिए कि अभी जो बीज बोने का काम कर रहा हूं और वो सही आप लोग के बीच में ये बीज बोने का काम कर रहा हूं, तो ये उम्मीद भी करता हूं कि चूंकि ये बीज मैं सही तरीके से बो रहा हूं और सही बीज बो रहा हूं, तो इसका फल भी जो है वो अधिकांश बेहतर और अच्छे होंगे. Bible says the word of God will bring healing. Bible says the word of God will bring hope. Bible says the word of God can bring help. और जैसे बाइबल हमें बताती है कि वचन जो है वो चंगाई लाती है, वो आशीष को लाती है और वो उम्मीदें लाती है, और ये सारी बातें हम लोग इसमें देखते हैं. Look at the mustard plant. It's not a tree, mustard plant. Mustard seed is the smallest seed. I don't know, we have other seeds, but it is a small. और ये सरसों का जो बीज है, जो सरसों के जो बीज है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा होता है और वो कोई वृक्ष की तरह नहीं होता, वो एक छोटा सा झाड़ की तरह का एक पेड़ होता है. When a farmer invests the seed, okay, listen to me very carefully. Farmer invests the seed, the plant grows in a way that it produces much harvest. I think Thompson sir is getting, net problems. So there is David Thapa, so he will also do it. Okay, sir. Can you repeat it? Yeah. Okay. I was telling about mustard plant. Audio was. मैं एक राई के दाने के विषय में बात कर रहा था. A mustard plant is not a tree, but it is a small plant. But the farmer invests, the seed is a small seed which produces a plant with a lot of harvest. जैसे कि हम बात कर रहे थे, देख रहे थे कि राई का दाना जब बड़ा होता है वो एक पेड़ नहीं बन जाता है, मगर एक छोटा सा ही एक वनस्पति के रूप में रहता है. मगर एक जब किसान उसमें बहुतायत से अपना निवेश करता है तो वो एक बहुत ज्यादा फल को अथवा बहुत ज्यादा फायदे को लेके आने वाला एक वनस्पति के रूप में बन जाता है. And do you know what Bible says? Bible says in this way, only the word of God can bring the harvest. और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर वचन बताता है, केवल परमेश्वर का वचन Ministry in 2021. Yeah, pastor. Yeah, you can say. Yeah. So only the word of God can bring a great harvest. केवल मात्र परमेश्वर का वचन ही महान फसल की कटनी को ले आता है. Only the word of God can bring the great move in 2021. और केवल परमेश्वर का वचन ही महान जागृति हलचल को 2021 में लेके आ सकता है. And do you know what Bible says? It says the grass may wither and the flowers may fade, but the word of God stands forever. वचन बताते हैं झाड़ें सूख जाएंगे, फूलें मुरझा जाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन नित्य बना रहेगा. And I'm giving you a challenge for 2021. मैं 2021 के लिए आपको एक चुनौती देना चाहता हूं. As you are preparing for an harvest, memorize the word of God.
कटनी के विषय में आप तैयारी कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को आप कंठस्थ करें या फिर स्मरण करें। Memorize the word of God. परमेश्वर के वचन को कंठस्थ कर लें। When you memorize the word of God, you hide God's word in your heart. जब आप परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में छुपा के रखते हैं। Now, once the seed is invested in the heart, all the promises of God is covered by the seed of God. जब एक बार बीज को बोया जाता है हृदय में तो जो बीज के साथ परमेश्वर के वाचाएं, परमेश्वर के वायदे उसके साथ ही कवर होके बैठी रहती है। And when the seed is in your heart, there is the Holy Spirit starts the move. और आपके हृदय में वहां पे बीज है तो वहीं पे पवित्र आत्मा की हलचल कार्य करना शुरू हो जाती है। Now listen, when you came to a salvation process, the first thing what you have seen is the word of God was invested. तो आपने जब आपका उद्धार का प्रक्रिया चल रहा था शुरुआत में आपने क्या देखा? देखा कि परमेश्वर का वचन ही था जो आपके अंदर आया। Once the word was invested, the Holy Spirit started to move, work. जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन का निवेश हुआ तो पवित्र आत्मा कार्य करने लग गई And that started to change your life. और वही बात आपके जीवन को बदलने लग गई। And this is the same way the word of God and the Holy Spirit works together. That's why Bible says you need to memorize the word of God. उसी वजह से परमेश्वर का वचन के साथ सहकार्य करते पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में बदलाव आते, परिवर्तन को हलचल को लेके आते। इसलिए वचन बताता है वचन को हमें इस कंठस्थ अथवा उनको अपने हृदय में स्मृति करके रखनी चाहिए। Okay, so number one, in the process, number one, we need to have the good seed. और पहला नंबर 1 है प्रक्रिया में पहला नंबर है कि हमारे पास एक अच्छी बीजें होनी आवश्यकता है। Number two, we need to have a rich soil. और हम नंबर दूसरा है कि हमारे पास एक अच्छी भूमि अथवा अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। Rich soil happens when the soil is good, soft and conductive for growth. और अच्छी मिट्टी तभी साबित होती है जब मिट्टी उपजन के लिए भरपूर रूप में वो फायदेजनक हो। If the soil is not good, अगर मिट्टी सही नहीं है अथवा अच्छी नहीं है, even the seed is good and the soil is not good, that means the seed will not produce a good harvest. यद्यपि बीज भले अच्छी क्यों ना हो, अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो अच्छी बीज भी अच्छी हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल को नहीं ले आ सकती है। Now listen very carefully. Did you have ever seen farmers going to the field and breaking up the soil? क्या आपने कभी देखा है किसान को कि जब वो खेतों में जाता है और मिट्टी को वहां तोड़ता है, And he breaks the soil and he removes all the unnecessary weeds from the soil and he prepares the soil. आपने देखा होगा वो खेतों में जाता है, खेत को तैयार करता है, भूमि जोतता है और हर एक झाड़ को जो जरूरत की नहीं है खराब झाड़ों को उखाड़ फेंकता है और मिट्टी को सही रूप से तैयारी करता है। To make the soil rich, the farmer fertilizes it. The farmer water it. The farmer do other things so that he can produce a good harvest from the soil. तो यहाँ पे क्या होता है जब यहाँ पे किसान मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को उपजन के लिए भरपूर करने के लिए वहां पे वो पानी लगाता है, वहां पे वो खाद्य पदार्थ वगैरह खाद वगैरह डालता है और मिट्टी को एकदम सही रूप से तैयार करता है। In short, if I use one word, can I use it this way? The farmer changes the character of the soil. अगर छोटे रूप में कहा जाए तो मैं यूं कहूंगा कि जो किसान जो है वो मिट्टी के उस चरित्र को, विशेषताओं को बदलता है वहां पे। And that is actually the heart. The soil is the heart of the mankind. और मिट्टी यहाँ पे मनुष्य के हृदय को प्रतिनिधि अथवा प्रकट करती है, So दिखाती है। when the farmer is getting ready for the harvest, the first thing God does is that he changes our heart. जब सर्वप्रथम जैसे किसान मिट्टी को तैयार करता है वैसे ही सर्वप्रथम कार्य ये होता है परमेश्वर हृदय को तैयार करते हैं मनुष्य के। Unless the soil is a good soil, how much ever good the seed is, it cannot produce an harvest. जब तक मिट्टी सही ना हो जाए, जब तक मिट्टी अच्छी ना बन जाए, तब तक भले कितनी अच्छी बीज बोया क्यों ना जाए, फल को अथवा कटनी के लिए वो तैयार नहीं कर पाता अथवा फसल को कटनी के लिए नहीं ला पाता है। God is waiting and watching for rich and ready soil.
परमेश्वर एकदम अच्छे और तैयार उस मिट्टी की इंतजार अथवा उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं। Number 3, the sub point, we need to have a reliable sower. और तीसरा है सब पॉइंट जिसमें हमें एक भरोसेमंद स्रोत की आवश्यकता है। Sower, right? The sower, is it correct? I'm so sorry, हमें भरोसेमंद बीज बोने वाला की आवश्यकता है। Correct. When I was in Kerala, we had some agricultural work, in our land. हमारे खेतों में खेती किसानी की कार्य होती रहती थी। And, we invited a farmer, who can do the work, who can assist us by doing the work. और हमारे को मदद करने के लिए है ना, खेत जोत करने के लिए हमने किसान को बुलवाया। And he comes at 12 o'clock in the afternoon and goes by 3:30. वो दोपहर के 12 बजे आता है और शाम को 3:30 बजे चला जाता है, 3 बजे चला जाता है। And he does what he want to do. He will not do what we say. जो हम कहते हैं वो करता तो है नहीं, मगर जो उसके मन में आता है वो वही करता है। In Kerala, we struggle for having, farmers, because there is, everyone does a white collar job. We don't have any farmers in our Kerala. और केरल में तो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग रहते हैं, व्हाइट कॉलर वाले जॉब करने वाले लोग रहते हैं, बहुत ही कम ही किसान को हम पाते हैं। So finally we got fed up. I said to my dad, okay, we are not going to call this guy anymore. और हम एकदम तंग आ चुके थे इस व्यक्ति को, इस किसान को देखकर, और मैंने पिता से कहा कि आपसे हम इसको नहीं बुलाएंगे। We called him for 4 to 5 days. We checked every day, but all the time he was doing the same thing. हमने 4-5 दिन के लिए बुलाया और 4-5 दिनों में हमने उनको परख के देखा, इनको देखा गौर करके, मगर वो हर दिन में सामान्य वैसे ही रहे जैसे वो थे। So one thing I came to understand, this farmer is not a proper farmer. और एक बात मेरे को समझ में आई कि ये जो किसान है वो सही किसान नहीं है। Now listen very carefully. अभी ध्यान से सुने मुझे। I have a good seed. मेरे पास अच्छी बीजें हैं। My land is a productive land. और मेरी जो भूमि है वो एकदम उत्पादक वाली भूमि है। But if I don't have a reliable sower, again the harvest will not happen. अगर मेरे पास भरोसेमंद बीज बोने वाला नहीं है तो फसल वहां पे ना आएगी, फसल की कटनी ना हो पाएगी। To sow the seed means to show the word of God. और बीज को बोने का मतलब है परमेश्वर के वचन को बोना। And do you know the power of the seed you and me carry? आपको मालूम है जो सामर्थ्य बीज जो आप और मैं लेके चलते हैं? Do you know the power of the word of God is that you can change people from the hell to heaven? आपको मालूम है परमेश्वर के वचन की सामर्थ जिसके द्वारा आप लोगों को नर्क से स्वर्ग की ओर ले जा सकते हैं। God is calling you and me this morning as a farmer. एक किसान के रूप में परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे हैं। God is calling us to be a reliable sower in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर हमें एक भरोसेमंद किसान के रूप में अथवा बीज बोने के वाले के रूप में बुला रहे हैं। The word of God can bring fruit. The word of God can bring changes. The word of God can bring power. The word of God can cast out the demons. And God says, you, the farmer, I gave you the authority, but are you faithful? Let's have a self-check this morning. So परमेश्वर का वचन फल को लेके आ सकता है, परमेश्वर का वचन बदलाव को लेके आ सकता है, परमेश्वर का वचन आशीषों को लेके आ सकता है, भरपूरी बदलाव को लेके आ सकता है, परमेश्वर का वचन सामर्थ को लेके आ सकता है। और परमेश्वर यूं कहते हैं कि हम बीज बोने वाले होने के नाते परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। क्या हमने सही उसका इस्तेमाल किया है? आज हम अपने आप को जांचें। When I'm speaking right now, in my body, I can sense the Holy Spirit is moving. And those who are watching over my, the sermon, I speak a word, the word which you are going to invest, the word as a reliable sower, you are going to put forth is the word which can penetrate to the hearts of people, who can bring changes in the hearts of people, who can change the attitude of the people. And God is going to use you in this 2021 as a farmer for a great harvest.
प्रकार से मैं बोल ही रहा हूं, मैं अपने शरीर में पवित्र आत्मा की हलचल को महसूस कर सकता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप मुझे सुन रहे हैं, इस सरमन को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है उन वचनों को बोलने के लिए, उन वचनों को बोलने के लिए जो 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 वचन लोगों के हृदय को छलनी कर दे, जो लोगों को बदल दे। वो वचन, वो बातें बोलने के लिए आपको परमेश्वर तैयार करेगा। In Hebrew, it says, I love this verse. The word of God is powerful than, sharper than the double-edged sword, which penetrates and divides the soul, spirit, and joints and marrows. यहाँ पे हिब्रू के पत्री में हम देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का वचन को इस प्रकार से चित्र किया गया है, बताता है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, जो हृदय को छलनी करता है, जो गुदों को भी वो आर पार कर देता है। That was so fast. It is because of the internet. Hallelujah. Hallelujah. So in the process, we have three things. One is the right seed. Number two, right soil. And number three, the reliable sower in the harvest. प्रक्रिया में हम ये पाते हैं, तीन मुख्य बातों को देखते हैं। पहली है अच्छी बीज, उसके बाद है एक अच्छी भूमि, और उसके बाद है एक भरोसेमंद बोने वाला किसान। See, I know that we are going much deeper, so that's why we are trying to make you understand what we are speaking. Number three, harvest needs a picking. Pardon, sir? Harvest needs a picking. कटने का जरूरत है harvest में. We need to cut it. कटने के लिए हमें काटने की आवश्यकता है, फसल को काटने की आवश्यकता है, बटोरने की आवश्यकता है। Is it right, Jain? Torna is a better word as David used. Okay. Harvest requires picking. यहाँ पे फसल को कटनी में, फसल की कटनी में फसल को बटोरना शामिल है। Now, you may be thinking, what is the importance of picking at the right time? और सही समय में सही रूप से बटोरने का मतलब क्या हो सकता है, आप शायद सोच रहे हो। Now listen. अभी सुनिए मुझे। This is very important what I'm speaking, and I'm speaking for the time. So बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कह रहा हूँ, और ये उस समय के लिए, उचित समय के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, अथवा हम बोल रहे हैं। If the land is ready with an harvest, and if there is no worker, that means you will not have the fruit. अगर खेत सही अथवा भूमि फसल को लेकर कटने के लिए तैयार है, मगर कटनी को बटोरने वाले अथवा काटने वाले वहां पे अगर कार्यकर्ता अथवा मजदूर नहीं है, तो आप फल को नहीं पाएंगे। I'm going to give you two sub points here too. यहाँ मैं आपको दो सब पॉइंट्स दूंगा। Number one is the timing in the picking. Timing in the picking. पहला नंबर में है कि उचित समय में बटोरना अथवा बटोरने का समय। Thank you, David. Number two is the tool in the picking. और दूसरा नंबर में है औजार, कटनी करने के लिए, बटोरने के लिए जो औजार होते हैं वो औजार। So let us go on number one. It says the timing is very important in the harvest. और पहले एक में हम जाते हैं जो बताते हैं हार्वेस्ट यानी कि कटनी के लिए उचित समय। Can you go to the book of John chapter 4 verse 35? John chapter 4 verse 35. एक खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 35। In that incident, you see a woman who is standing close to the well, and Jesus was ministering to this woman. And वहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री को के कुएं में लगे खड़ी रहती हैं, जहाँ पे यीशु उससे बात करते हैं, उसके साथ कार्य। Immediately after the encounter, listen to me please, Jesus started to speak to disciples. अब यहाँ पे हम देखते हैं तुरंत ही यीशु मसीह चेला बनाना शुरू कर देते हैं। You know, when I speak it, I feel a burden in my heart. मैं जब बात ये कर रहा हूँ, मेरे को हृदय में एक बोझ सा मेरे को महसूस हो रहा है। Jesus says the harvest is ready. यहाँ पे यीशु कहते हैं फसल तो तैयार हैं। You are telling 4 months after. No, Jesus says the harvest is now. The timing is now. It's not for tomorrow.
यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने तो कहा कि 4 महीने के बाद कटनी होगी। नहीं, असल में समय, कटनी का समय तो अभी है, फसल तैयार है, अभी है ये समय। On the other side, Jesus says, I'm looking for, those farmers. I'm looking for those people who can be in the harvest, but there are few workers only. And Jesus's heart is getting, very, sad because of this. The harvest is ready, the workers are very less. मगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वहां पे आवश्यकता है मजदूरों के लिए, वहां पे मजदूर कम है। यहाँ पे यीशु का हृदय एकदम शोकित होता है, क्योंकि फसल तो तैयार है कटनी के लिए, मगर काटने वाले, बटोरने वाले किसान, मजदूरों की एकदम ज्यादा आवश्यकता है, वो बहुत ही कम है। Can you listen to me very carefully? It's मुझे ध्यान से been आप सुन सकते हैं। in from last few years, in few years, many people were crying for Lucknow. Many people were weeping, fasting, praying, struggling. Lot of people have shed blood. Lot of people were persecuted. Do you know why? Because they were preparing for the harvest where we came in. This is our time to do the work. आपको मालूम है पिछले कई वर्षों से लोग यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर भारत के लिए रो रहे हैं, करा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अपने खून पसीने को बहा रहे हैं, सतावट को झेल रहे हैं। आपको मालूम है वो सब क्यों कर रहे हैं? ये बात हमारे लिए इस फसल को वो तैयारी कर रहे हैं, और हमें हैं जो इस फसल को काटने वाले हैं, बटोरने वाले इस सही समय में। So according to this passage, Jesus is speaking about the Kairos. Kairos means God's appointed season. This is the season. 2021 is the Kairos time for the move of the Holy Spirit. और यहाँ पे इस वचन के अंतर्गत परमेश्वर यहाँ पे काइरोस के विषय में बात कर रहे हैं। काइरोस यानी कि नियुक्त किया गया समय, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया समय, और ये समय परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है उस महान फसल की कटनी के लिए। And the second thing in picking is the tool. और यहाँ पे कटनी को बटोरने के उस शीर्षक के अधीन अंतर्गत में दूसरी छोटी बिंदु है कि औजार, फसल को काटने के लिए जो आवश्यक औजार। According to Mark chapter 4 verses 29, he sends us with a sickle. मरकुस 4 का 4 वर्स, मरकुस 4 का 29, वो हमें भेजते हैं। He sends us with a sickle. What is sickle, Jane? सिकल, वो हमें शेकल के साथ भेजते हैं। समथिंग सिकल, ओके, वो हमें काटने वाला उस हसिया के साथ भेजते हैं। And look at the hand of the farmer. और यहाँ पे किसान के हाथ को देखें। Listen very carefully. He has a sickle in his hand. वो उसके हाथ में काटने वाला औजार है। A farmer has two hands. में देखिए, किसान के पास 2 हाथ होते हैं। On one hand, it is a sickle. और एक हाथ में उसको काटने के लिए, फसल को काटने के लिए हसिया है। In the second hand, he have in the fruit of the harvest. और दूसरे हाथ में उसके पास वो काटे हुए वो फल उसके हाथ में, अनाज उसके हाथ में। And the sickle is so sharp that when he cuts, the fruit, he cuts in a way, it is not in a harsh way. When he cuts the fruit, he cuts in a, he embraces in a gentle way. जब वो काटता है उस कटारी से, वो जब फसल को काटता है, वो हड़बड़ाते हुए, जल्दीबाजी में नहीं काटता है, मगर धैर्यता में उस फसल को अंगालते हुए अथवा फसल को गले लगाते हुए, उसे ग्रहण करते हुए वो फसल की कटनी करता है। He collects it very carefully. एकदम ध्यानपूर्वक रूप से वो जतन के साथ वो उसको जमा करता है। I'm speaking on a spiritual aspect here. When you deal with people, don't be harsh. Okay, Jesus was not harsh to the Gentiles. Jesus was very soft to the Gentiles, but he was harsh with the Pharisees. Okay, so cutting gently is very important in ministry.
और मैं इस बात को मैं हम अगर आत्मिक तौर में कहें तो हम जब लोगों की हम जब फसल करते हैं, यानी कि जब हम लोगों को मसीह में ला रहे होते हैं, तो हमें उनके प्रति कभी भी दबाव रूप से अथवा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ाहट के साथ नहीं करनी चाहिए। हम यीशु को देखें, यीशु कभी भी अन्य जातियों के प्रति चिल्लाए नहीं, उनके साथ भी उन्होंने एकदम सहजता से बात की। हाँ, यीशु मसीह ने डांटा, वो फरीसियों को उन्होंने डांटा, मगर हम लोगों को नम्रता के साथ अथवा प्यार के साथ हम उनके साथ व्यवहार करें। Thank you, David. You're doing a good job. Thank you. Now listen very carefully. The first thing the farmer does is he embraces gently the harvest. Number two, he collects the harvest very carefully. That shows in the spiritual aspect, bringing them to the church. अब यहाँ पे किसान क्या करता है, पहले तो वो फसल को एकदम होशियारी के साथ उसको ग्रहण करते हुए काटता है, और उसके बाद होता है कि वो उसको होशियारी के साथ इकट्ठा करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को कलीसिया में लेके And आना the है। third thing what he does is he collects it and save it very carefully. अगली बात ये है कि उसको जब वो काटता है, काट के उसको बटोरता है अथवा उसको जमा करके एकदम होशियारिता के साथ उसे इकट्ठा करके रखता है, जमा करके रखता है। And God is speaking to us that you cannot force people by convicting them. You cannot force them by converting them, but you can do with a compassionate heart to save souls for the kingdom of God. आप लोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप उनको कायरता में नहीं लेके आ सकते हैं, मगर आप उनको होशियारी के साथ आप उनको बतला के मसीह में लेके आ सकते हैं। Let me come up with the last point with a soft landing. एकदम सहज उताराव के साथ मुझे अंतिम पॉइंट कहने दें। The harvest requires a preserving. और यहाँ पे हार्वेस्ट को यानी कि निरंतरता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। Last week, I went to a place called Adur in Kerala for ministering the word of God, and I spent time with the pastor. वहाँ पे मैं अदूर करके केरल में एक जगह पे गया था सेवकाई के लिए, और वहाँ पे मैंने पासवानों के साथ समय को बिताया। So me and that pastor, we shared many testimonies in the ministry about the ministry. और सेवकाई को लेकर हमने एक दूसरे हम पास्टर ने और मिलकर एक दूसरे से हमने गवाही को हमारे सेवकाई के विषय में बताया। And he taught me a lesson which I was not doing so far. और उन्होंने एक पाठ मुझे, एक सीख मुझे सिखाया जिन बातों को मैं नहीं कर रहा था अब तक। And I encourage and I try to teach you guys also to do it from today. और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, और आप आज से उन बातों को शुरू कर दें। When he says, when I get 100 rupees or when I get 1,000 rupees, I divide it into 4 divisions. उन्होंने यूं कहा, अगर मुझे कुछ पैसा मिलता है, मान लीजिए मुझे 100 रुपए अथवा 1000 रुपया मिलते हैं, तो मैं उसे 4 हिस्सों में बांटता हूं। पहले Number 1 is tithe. पहला है दशांश के लिए। Number 2 is for my family. दूसरा नंबर, दूसरी जो हिस्सा है वो मेरे परिवार के लिए। Number 3 is for missions. और तीसरा है सेवकाइयों के लिए, मिशन के लिए। गरीब लोगों का बीच में सेवकाई और ऐसा मिशंस के लिए। और number 4, I save it for my next trip. The next portion I save it for next trip. और चौथा हिस्सा है मैं मेरे अगली सेवकाई यात्रा के लिए। One thing he taught me. एक बात उन्होंने मुझे सिखाया। He is a man who preserves for the next. और वो व्यक्ति है जो अगली बात के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे आपको मालूम है कैसा है, हम क्या करता है, 100 रुपये मिलेगा तो 20 रुपये का पतासा खाएंगे, 25 रुपये का रोल खाएंगे, 50 रुपये का KFC खाएंगे, पूरा पैसा खत्म। समझ गया मेरा बात? We don't have a proper preservation for the tomorrow. और हमारे पास कल के लिए एक बेहतरीन मतलब जमा करके रखने वाला अथवा उसको बचाए रखने वाला ना एक प्रकार का बात नहीं है हमारे में। Now listen very carefully. This is the last statement I'm telling you. ये अंतिम मेरा स्टेटमेंट है, मैं कहने जा रहा हूँ जो A good farmer will not eat everything what he gets from the harvest. और एक अच्छा किसान
जो कुछ भी वो फसल को से पाता है वो एक ही बार में खा के खत्म नहीं करता है। He saved a major portion for the next bowing time. और अगले आने वाले समय के लिए वो एक बड़ी मात्रा में एक हिस्सा को वो सुरक्षित रखता है। He may be taking 75% of what he got, but 25% he saves for investing for the next time. शायद वो 75% अपने लिए रख सकता है, मगर 25% को वो बचाए रखता है अगले बोई जाने के लिए। If he eats that 25%, he will not have an harvest next time. अगर वो उस बचाए गए जाने वाले 25% को भी खाए खत्म कर लेता है तो अगले फसल कटने के लिए उसके पास कुछ ना होगा। Let me say this and pray for you. और मुझे ये कहने दे और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Don't eat everything what you get. जो कुछ आप पाते हैं संपूर्ण ना खाया जाए। Let you study to give and give in 2021 for the great harvest. और महान एक फसल की कटनी के लिए 2021 के लिए आप दें और देते जाएं। Unless you give, you cannot have the harvest. Pardon, sir? Unless you give, you cannot have the harvest. जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप एक फसल को नहीं पा पाएंगे। And this is my prayer for all of you in Lucknow. You may not be rich, you may have only little, but give from that little. God will increase it for a greater harvest. मेरे यही प्रार्थना है संपूर्ण लखनऊ के लिए। शायद आपके पास ज्यादा रूप में ना होगा, मगर आपके पास में जो कम है उसी में से आप दें और एक महान फसल की कटनी के परमेश्वर से इंतजार करें। 4 requirements in the harvest. Number 1 is planning. Number 2 is process. Number 3 is picking. And number 4 is preserving. और यहाँ पे हार्वेस्ट की प्रक्रिया में हमने देखा, पहली है योजना बनाना, दूसरी है प्रक्रिया, तीसरी है कटनी करना और बटोरना, और चौथा है उसको सुरक्षित रखना। May the Lord bless you for a great harvest in 21 is my prayer, and possible. God bless you. Over to you, Pastor Peter. Amen.